السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ کے بلدی انتخابات کے سلسلے میں 7 کارپوریشن اور 110 میونسپلٹیز کے لیے 28,456 پرچے نامزدگی موصول۔ تلنگانہ پولیس نے فون ٹیپنگ معاملے میں سابق وزیر اعلیٰ KCR کو ایک اور نوٹس کی جاری۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے اسٹینڈنگ کمیٹی نے 11,460 روپے کے بجٹ کو دی منظوری۔ انفراسٹرکچر، سڑکوں، پلوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ مجلس نے بجٹ کو ناکافی قرار دیا۔ GHMC کی آمدنی بڑھانے پر زور۔ BRS پارٹی کے سربراہ KCR کی فارم ہاؤس پر ہی پوچھ تاچھ کی درخواست پولیس نے کی مسترد۔ اتوار کی دوپہر 3 بجے پولیس اسٹیشن آنے کی ہدایت۔ KTR نے طریقہ کار پر اٹھائے سوال۔ خواتین کو بااختیار بنانے کی خاموش تبدیلی جمہوری انقلاب کے طور پر ابھر رہی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق سیکھنے پر گورنر نے طلباء پر دیا زور۔ حیدرآباد بینک اسٹریٹ کوٹھی پر تاجر کے پیر پر فائرنگ کرتے ہوئے رہزن 6 لاکھ روپے کا بیگ لے کر فرار۔ گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے چرلاپلی میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد نے ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کر کی خودکشی۔ تلنگانہ ونپرتی سے سمیت غذا سے 20 سے زیادہ طالبات متاثر، سرپرستوں کا اظہار فکر مندی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی گورنر جشن دیو ورما نے نوجوانوں اور طلباء کو تبدیلی ساز اور مستقبل کے رہنما قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اور ریاستی مقننہ وہ اعلیٰ ترین جمہوری ادارے ہیں جو قوانین، پالیسیاں اور ملک کے مستقبل کو تشکیل دیتے ہیں۔ گورنر آئی ویژن یوتھ پارلیمنٹ یوتھ لیڈرشپ کے گرانڈ فائنل سے خطاب کر رہے تھے۔ گورنر نے ذمہ دار اور مصروف شہریوں کو قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق تجرباتی اہمیت پر زور دیا۔ گورنر نے طلباء کے تیار کردہ وائٹ پیپر کی ستائش کی اور اسے ایک پرامید دستاویز قرار دیا ہے جو مستقبل میں موجودہ نسل کی توقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وائٹ پیپر میں حکمرانی ترقی کے مسائل پر توجہ دی گئی ہے جو نوجوان ذہنوں کی تجزیاتی اور قائدانہ صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ گورنر نے کہا کہ ہندوستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کا عمل جمہوری انقلاب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ اور BC ویلفیئر پونم پربھاکر نے اس بات پر زور دیا کہ جمہوریت کی مضبوطی اور سیاست کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے نوجوانوں کے فعال شرکت ناگزیر ہے۔ کلکٹر حیدرآباد ہری چندنا داسری نے کہا کہ آئی ویژن یوتھ پارلیمنٹ کا تصور لرننگ سے آگے بڑھنے اور کلاس روم کو جمہوریت کی تجربہ گاہوں میں تبدیل کرنے کے لیے کیا گیا۔ Thank you, His Excellency the Governor of Telangana, Sri Jishnu Dev Varma Garu, Honorable Ministers and the other dignitaries. Now we invite our esteemed dignitaries to share their thoughts and reflections. మండల్ లెవెల్లో జరుపుకున్న తర్వాత మనం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మనకు వెన్నంటూ ఉన్నటువంటి జరిగింది 183 స్కూల్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ ఈ గ్రాండ్ ఫినాలే జరుపుకుంటున్నాం. ఇది పిల్లల్లోని ఒక ఏమంటారు ఉత్సాహం. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہارورڈ یونیورسٹی کے کینیڈی اسکول میں دیگر 62 طلباء کے ساتھ ایگزیکٹو ایجوکیشن پروگرام مکمل کر لیا۔ یہ پروگرام 21ویں صدی میں قیادت کے عنوان سے منعقد کیا گیا، جس کے تحت روزانہ صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک کلاسز جاری رہیں گی۔ یونیورسٹی کے علاقے میں درجہ حرارت
-15 ڈگری تا -24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور اس سرد ماحول میں لیڈرشپ پروگرام کی تکمیل کی گئی۔ پروگرام کی کامیاب تکمیل پر فیکلٹی کی جانب سے طلباء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ 20 ممالک کے طلباء نے لیڈرشپ پروگرام میں شرکت کی، جس کے تحت ماہرین نے قائدانہ صلاحیتوں اور عوام کی خدمت میں جیسے امور پر کلاسز کا اہتمام کیا۔ لیڈرشپ پروگرام میں چیف منسٹر نے ایک عام طالب علم کی طرح شرکت کی اور مقررہ اسائنمنٹ اور ہوم ورک کی تکمیل کی۔ 5 روزہ پروگرام کے دوران چیف منسٹر نے ماہرین سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ 25 تا 30 جنوری یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ 5 روزہ کورس کے اختتام پر وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کورس کی تکمیل پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے کامیابی کے ساتھ ایگزیکٹو ایجوکیشن پروگرام کی تکمیل کی ہے۔ تلنگانہ پولیس نے فون ٹیپنگ معاملے میں سابق وزیر اعلیٰ KCR کو ایک اور نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 فروری بروز اتوار پوچھ تاچھ کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے۔ اس سے پہلے KCR کو 30 جنوری کو پیش ہونے کی نوٹس دی گئی تھی، تاہم KCR نے انتخابی مصروفیات کی وجہ سے دوسری تاریخ دینے کی درخواست کی تھی۔ KCR کی طرف سے فارم ہاؤس پر ہی پوچھ تاچھ کی درخواست کو پولیس اور خصوصی ٹیم نے مسترد کیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ اہم دستاویزات اور دوسرے شواہد کو فارم ہاؤس یا کسی گاؤں تک نہیں پہنچایا جا سکتا، اس لیے انہیں پولیس اسٹیشن آ کر تحقیقات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اب اتوار 1 فروری کو دوپہر 3 بجے KCR سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ దగ్గరికి బాయ్ ఎప్పుడుంది డేట్ کارگزار صدر KTR کی KCR سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر سابق وزیر جگدیش ریڈی بھی موجود تھے۔ پارٹی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اس ملاقات میں ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال، بلدیاتی انتخابات اور فون ٹیپنگ معاملے میں SIT کی جانب سے جاری کردہ نوٹس اور تحقیقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات کے دوران SIT کے سامنے پیشی کے دوران پوچھے جانے والے سوالات، احتیاطی تدابیر اور بیانات سے متعلق نکات پر بھی بات ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس فارم ہاؤس پر ایک دن قبل سابق وزیر ہریش راؤ نے بھی KCR سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد یہ قیاس آرائیاں تیز ہو گئیں کہ پارٹی قیادت فون ٹیپنگ کیس کو لے کر ایک مشترکہ حکمت عملی طے کر رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر SIT کے ممکنہ رپورٹ سیاسی طور پر خاص اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے KCR کو جاری کی گئی خصوصی ٹیم کی نوٹس پر شدید اعتراض کیا ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر KT راما راؤ نے جمعے کی رات دیر گئے ان کی خیامگاہ پر KCR کے لیے نوٹس چسپاں کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ KTR نے کہا کہ جب BRS سربراہ نے پولیس کو اپنے جواب میں اپنا رہائشی پتہ بتایا تھا، اس کے باوجود بھی نوٹس کی کاپی میری رہائش گاہ پر چسپاں کی گئی، جبکہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا۔ KTR نے سوال کیا کہ یہ حکومت اور وزیر اعلیٰ کا تکبر نہیں ہے۔ KTR نے کہا کہ قواعد کے مطابق 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد سے ان کی رہائش گاہ پر پوچھ تاچھ ہونی چاہیے، لیکن پولیس اس قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ KTR نے استفسار کیا کہ کیا پولیس کو معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں، یا پھر پولیس کو اپوزیشن لیڈرز کو ہراساں کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ KTR نے حکومت اور وزیر اعلیٰ کا نام لیے بغیر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو قانون اور انصاف کا احترام نہ ہو، لیکن ہمیں عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے۔ صحیح وقت پر عوام ان تمام حرکتوں کا جواب دیں گے۔
तेलंगाना की सियासत में सनसनी फैलाने वाले फ़ोन टैपिंग केस में साबिक़ वज़ीर आला और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव को खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के बाद सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। ताज़ा पेशरफ्त के मुताबिक चंद्रशेखर राव ने कल की तहक़ीक़ात में शामिल होने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। इससे कबल उन्होंने एक मकतूब के ज़रिए दरख्वास्त की थी कि उनसे एक इरावली में वाक़ उनके फार्म हाउस पर पूछगछ की जाए, ताहम हक्काम ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस मामले पर KCR ने BRS के अहम कायदीन और क़ानूनी माहिरीन के साथ तवील मुशावरत की, जिसके बाद उन्होंने जाँच में ताउन करने का फ़ैसला किया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इतवार की दोपहर SIT के ओहदेदार उनकी रहायशगाह पहुँचकर उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे और इस तमाम कार्रवाई की वीडियोग्राफी किए जाने का भी इम्कान है। बल्दी इंतखाबात के मौके पर इन नोटिसों की इजराई पर BRS के कारकुनों में सख्त बरहमी पाई जाती है और पार्टी कायदीन इसे कांग्रेस हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब के चंद्रशेखर राव का मानना है कि तहक़ीक़ात में ताउन के ज़रिए हक़ाइक़ सामने लाए जा सकते हैं। BRS के लीडर प्रवीण कुमार ने कहा है कि जानबूझकर नंदीनगर की रिहाइश पर KCR के लिए नोटिस चस्पा की गई हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि KCR कहां पर रिहाइश पजीर हैं, उसकी इत्तला होने के बावजूद भी नंदीनगर के मकान पर नोटिस चस्पा करना इंतज़ामिया और पुलिस की नीयत को ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि 65 साल के फ़र्द के साथ इस तरह का क़ानूनी रवैया होना चाहिए, इसका भी लिहाज नहीं किया गया। प्रवीण कुमार ने यह भी कहा कि इंतखाबी हलफनामे के मुताबिक हरीश राव सिद्दीपेट में रहते हैं। प्रवीण कुमार का घर सरपुर कागज़ नगर में है, लेकिन हैदराबाद में हमारे मकानात पर नोटिस दी जाती है। నోటీసు పంపించాను, మరి నోటీసు పంపించిన వాళ్ళు మరి నోటీసు పంపించారు, నోటీసు ఇంటి మీద అతికిచ్చాను. ఎంత ఘోరం! లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఇంటి ముగ్గట, ప్రతిపక్ష నాయుడు ఎక్కడుంటాడో తెలుసు. ఆ క్యాబినెట్ లో ఉండే మంత్రులందరూ కూడా ప్రతిపక్ష నాయకుడి ఇంటికి పోయి రకరకాల పండగలకు కార్యక్రమాలకు ఇన్వైట్ చేయడం వచ్చు, ఫోటోలు దిగడం వచ్చు, సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం వచ్చు, అధికారికంగా ఇవ్వడం వచ్చు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారి కింద పనిచేస్తున్న పోలీసులకు మాత్రం కేసీఆర్ గారు నివాసం ఉంటున్న బంజారా హిల్సే కనిపిస్తా ఉన్నది, నందినగరే కనిపిస్తా ఉన్నది. అక్కడ గోడకు అంటించి వచ్చింది. ఇంతకన్నా దుర్మార్గమైన కక్షపూరిత రాజకీయం ఏమన్నా ఉంటుందా? ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచించాలి. నేను దాంట్లో లీగల్ పాయింట్స్ కూడా చెప్తాను, ఎందుకు నోటీస్ అంచడం తప్పనేది. स्पीकर तेलंगाना खानसाज काउंसिल असेंबली G प्रसाद कुमार ने खैरताबाद रुकन असम्बली D नागेंद्र के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त की समाअत की। BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी और BJP रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी ने इंसदाद इनहराफ कानून के तहत नागेंद्र को असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार देने की अपील करते हुए स्पीकर को दरख्वास्त दी है। स्पीकर ने D नागेंद्र को नोटिस जारी करते हुए तहक़ीक़ात के लिए आज हाजिर रहने की हिदायत दी थी। असम्बली में वाक़ अपने चैम्बर में स्पीकर ने जांच का आगाज़ किया। इस मरहले पर BJP रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात के पेश नज़र समाअत की तारीख मुलतवी की जाए। स्पीकर ने आइंदा समाअत 18 फरवरी को मुक़र्रर की है। तेलंगाना के वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने जुमे को नुमाइश ग्राउंड पर महकूमी अखिलती बहबूद के स्टॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने बताया कि नुमाइश में महकमे के स्टॉल पर अक़लियतों की बहबूद से मुतालिक स्कीमों को नुमाया किया गया है। अज़हरुद्दीन ने टिमरीज़ के तलबा से भी मुलाकात की और उनकी सलाहियतों की सताइश की। अज़हरुद्दीन ने सरपरस्तों से अपील की कि अपने बच्चों को टिमरीज़ के स्कूल्स में दाखिला दिलवाएं, जहां ताम और रिहाइश के साथ मेयारी तालीम दी जा रही है। टिमरीज़ का जो डिपार्टमेंट है माइनॉरिटी वेलफेयर में बच्चों से लड़कों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट
94 या 96% उनका रिजल्ट है स्कूल में और 88% इंटरमीडिएट है, लेकिन मेरे ख्याल में जो टैलेंट है उनके ऊपर उनके पास है और जो टैलेंट लोग जाहिर कर रहे हैं, तो हम लोग ये बहुत अच्छी स्कीम है हमारे सीएम साहब ने उसको आके ये स्कीम को बहुत ज़्यादा सीएम साहब ने एनहेंस कर दिया और बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री स्पोर्ट्स है, हर चीज़ है, खाना और बच्चे लड़के और लड़कियों को। और मुझे बहुत खुशी हो रही है मैंने देखा बच्चों से बात करके इतना अच्छा लोग जो भी इनके स्कीम में जो भी वो कर रहे हैं इंग्लिश में इनके स्कूल में पूरे जो भी बात कर रहे थे उन्होंने बताया। और यहाँ पे देखा है थोड़े लड़के साइंटिस्ट भी बनना चाह रहे हैं, पहले से ही साइंटिस्ट बन गए और वो लोग ने जो ब्लाइंड स्टिक बनाया और ब्लाइंड लोगों के लिए एनएस बनाई, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं जो भी लोग यहाँ इतना अच्छा एग्जीबिशन किया है उनको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे तस्वीर या फिंगरप्रिंट के अलावा अब चेहरे शनासी के ज़रिए भी आधार कार्ड की तस्दीक मुमकिन हो गई है। UIDAI की जानिब से तैयार करदा डिजिटल आधार ऐप के ज़रिए सार्फिन खुद अपने आधार की तफसीलात को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, जिससे आधार डेटा चोरी या गलत इस्तेमाल के खदशात से नुमाया कमी आएगी। इस ऐप की एक बड़ी खुसूसियत ये भी है कि एक ही मोबाइल फ़ोन में ख़ानदान के 5 अफराद तक के आधार की तफसीलात महफूज की जा सकती हैं। ऐप के दीगर फ़वाइद में मोबाइल नंबर की अपडेट शामिल है। मोबाइल नंबर तब्दील करने या मामूली इस्लाहात के लिए बैंकों और आधार मराकज़ के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि ये तमाम काम घर बैठे ऐप के ज़रिए मुमकिन हो सकेंगे। UIDAI के मुताबिक कोई भी एजेंसी सार्फिन की मालूमात को महफूज नहीं कर सकती। डेटा सिर्फ तस्दीक के अमल के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे आधार के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के लिए नामजदगियां दाखिल करने का मरहला जुमे को मुकम्मल हो गया, जिसके साथ ही रियासत भर में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई हैं। 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और 116 म्यूनसिपलिटियों के लिए मजमूई तौर पर 28,456 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियां दाखिल की हैं। कांग्रेस को बागी उम्मीदवारों से परेशानी है। इलेक्शन हकाम के मुताबिक इब्तिदाई 2 दिनों में 9,276 नामजदगियाँ दाखिल हुई, ताहम आखिरी दिन जुमे को दफातर के बाहर गैर मामूली हुजूम देखने में आया और सिर्फ एक दिन में 19,180 नामजदगियाँ दाखिल की गईं, जिससे इंतखाबी फ़िज़ा मज़ीद गर्म हो गई। तेलंगाना वनपर्ती ज़िले के कोत्तागुड़ा में BC गर्ल्स हॉस्टल में मुबैना समेत ग़िज़ा से तकरीबन 20 से ज़्यादा तालिबात मुतासिर हुई हैं। तालिबात को करीबी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आलूदा पानी के इस्तेमाल से तैयार की गई ग़िज़ा की वजह से तलबा मुतासिर हुए हैं, ताहम इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है। तलबा ने क़े और दस्त की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया।
عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے 10ویں بجٹ اجلاس کا آج میئر وجے لکشمی کی صدارت میں آغاز ہوا۔ میئر نے اپنے 5 سالہ دور کا تفصیلی احاطہ کیا۔ با اعتبار عہدے ارکان، عوام اور کارپوریٹرز کے علاوہ کمشنرز، بلدی عہدیداروں، عملے اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ میئر نے کہا کہ 5 سالوں میں عظیم تر بلدیہ حیدرآباد نے تمام سطحوں پر ترقی کی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ دفتر سے باہر بھی عوام کی خدمت کے لیے دستیاب رہیں گی۔ بلدیہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے جی ایچ ایم سی کے لیے 11,460 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا ہے۔ بجٹ کے ذریعے سڑکوں کے انفراسٹرکچر، سینیٹیشن کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ سڑکوں، پلوں، سی آر ایم پی کے لیے بھی اس میں بجٹ مختص کیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ جی ایچ ایم سی کو پراپرٹی ٹیکس کے ذریعے 2,245 کروڑ روپے کی اور عمارتوں کے اجازت نامے سے 1,200 کروڑ، ایکوپینسی سرٹیفکیٹ سے 400 کروڑ روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ ریاستی حکومت کے گرانٹس کے ذریعے 3,100 کروڑ روپے کی توقع ہے۔ Honorable corporators, ex-officio members, Deputy Mayor Srilata Garu, Commissioner R.V. Kannan Garu, Zonal Commissioners, Heads of different departments, print and electronic media, my GHMC staff and all present. Good morning to one and all. As my term as GHMC Mayor comes to an end, I want to speak directly to you from the heart. Working alongside you have been one of the most meaningful parts of this journey. We did not always agree, and this is the nature of true leadership. But even in our differences, I always felt your commitment to this city and to the people we serve. Your voices, your debates, and your dedication help shape better decisions and a stronger city. I am deeply grateful for your cooperation, your honesty, and your willingness to put the city above all personal interests. Together, we faced difficult moments and celebrated important achievements. رکن اسمبلی حلقہ چار مینار میر ذوالفقار علی نے جی ایچ ایم سی کی آمدنی کو لے کر سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کو ملنے والا ریونیو حکومت کے خزانے میں جاتا ہے، یہ رقم کمشنر بلدیہ کے محکمے میں آنا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیوں اس رقم کو بلدیہ حاصل نہیں کر رہی ہے۔ اس پر کمشنر بلدیہ نے بتایا کہ محکمے سے متعلق اجازت ناموں کی فیس بلدیہ کو ہی موصول ہو رہی ہے۔ Also, I asked about this one thing, that the main source of income is town planning, whatever amount we are receiving, sir. But still, the amount is going in the government head, sir. That is our money, sir. It has to come to Commissioner GHMC. Still, we are receiving the checks, the DDs, and the amount is going in the government account, sir. That is our money, sir. Why you are not trying for that, sir? Last time also I asked about this, sir. అది మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పిన మ్యూటేషన్ ఫీజు రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు మ్యూటేషన్ యూఎల్బీస్ Not for the total, the permission fees, sir. పర్మిషన్ ఫీస్ కమింగ్ డైరెక్ట్లీ టు us, డైరెక్ట్లీ టు అవర్ అకౌంట్. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. పర్మిషన్ ఫీస్ దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ అట్ ఆల్. ఆల్ పర్మిషన్ ఫీస్ కమింగ్ టు us ఎక్సెప్ట్ ద సబ్ రిజిస్టార్ ఆఫీస్ లో కలెక్ట్ చేసిన మ్యూటేషన్ ఫీస్, దే వాట్ దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ఇన్ సబ్ రిజిస్టార్ ఆఫీస్, దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు గవర్నమెంట్. దట్ ఇస్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ గివింగ్ us in different form. So whatever tax revenue you supposed to get from town planning, revenue comes from town planning, we are getting complete. There is no issue. مجلس کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے بجٹ کو ناکافی قرار دیا ہے۔ کونسل کے آخری اجلاس کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے محمد ماجد حسین نے مختلف محکمہ جات کا حوالہ دیا اور کہا کہ بجٹ 30,000 کروڑ روپے کا ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں عوام کی بہتر خدمت کے لیے زائد بجٹ درکار ہے۔ 650 اسکوائر کلومیٹرز کے لیے 9,200 کروڑ روپے اور 1,400 اسکوائر کلومیٹرز کے لیے 2,260. یہ ہوگا سر؟ اگر آپ
Hindustan की सबसे बड़ी municipality, which we told in front of the press that now GHMC has become the largest municipal corporation in the whole country. Largest municipal corporation का बजट 11,600 और जो 1400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो रख रहे हैं उसका 2,260, कम से कम 20,000 करोड़ रहना था और एटलीस्ट 10,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट से हमें लाना होगा. इन सबको अगर हमारी आवाम को हमें सहूलत देना है. आप बताइए हमें क्या हुआ. GHMC 18 साल पहले बना, 18 ईयर्स हो गए मैडम. 18 ईयर्स में हम लोग पूरे जने 18 ईयर्स हैं. कोई एक कॉर्पोरेटर उठ के बोल सकता है मेरा डिवीजन में बराबर पूरे सैनिटेशन है, पूरे एक. अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इजलास में बजट को लेकर मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने बल्दिया की आमदनी में इजाफे पर जोर दिया है. सलीम बेग ने बताया कि GHMC को हुकूमत के ज़रिए इस्तेमाल इमारतों का रवैया नहीं मिल पाता है. GHMC को हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए रकम वसूल करनी चाहिए. हुकूमत के आगे हाथ फैलाने के बजाय GHMC का हक़ से मिलना चाहिए. स्टैम्प ड्यूटी की रकम GHMC को नहीं मिलती है. हुकूमत की तरफ से जो किराए मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलती. उन्होंने शजरकारी को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि लाखों पौधे लगाए जाने की बात की जाती है लेकिन कोई भी हल्के में 500 पौधे भी नहीं लगाए गए. आप देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट पर हम साबिक़ा 180 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि हर स्टैंडिंग कमेटी में जब भी स्टैंडिंग कमेटी होती है शहर की किसी ना किसी एक रोड का रोड वाइडनिंग का सैंक्शन दिया जाता है और कई रोड वाइडनिंग के RDBs तैयार हैं और उसके जो है सो मुकम्मल कई जगह तो कॉन्सेप्ट दे चुके हैं. मैं सिर्फ अपने हल्के चंद्रायन गुट्टे की बात करूंगा. हल्के चंद्रायन गुट्टे में जब इस वक्त 5 बड़ी रोडों के लिए RDB तैयार हुआ और उसके जो है सो कॉन्सेप्ट भी लिए गए और यहाँ सिर्फ बजट 250 करोड़ रखा गया है, जबकि हमारे सिर्फ चंद्रायन गुट्टे में 400 करोड़ रुपए की ज़रूरत दरकार है. तो शहर हैदराबाद में हम कई सड़कों की रोड वाइडनिंग के नाम पर RDB तैयार किए, सब कुछ किए, लेकिन यहाँ बजट में कमी की गई है और ग्रीन बेल्ट पे जो रखा गया है मैं समझता हूँ इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा. इसलिए कह रहा हूँ कि हर बरसात का मौसम शुरू होता है तो ऐलान कर दिया जाता है कि हर डिवीज़न में 1,00,000 झाड़ लगाएंगे, 50,000 झाड़ लगाएंगे, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि हमारे इन 5 साल के दौर में किसी एक बल्दी हल्के में 500 झाड़ भी नहीं पनपने पाए, न लगाए गए, न कोई दिलचस्पी दिखाई गई. ये फंड्स मिसयूज के बराबर है. हमको जो है ऐसे बजट को इसको रोक कर हमको खुसूसी तौर पर डेवलपमेंट के लिए जो आज शहर में ट्रैफिक कस रही है उसको भी हमें मद्देनजर रखते हुए SNDP के बजट को बढ़ाना चाहिए. हैदराबाद कोठी बैंक स्ट्रीट पर हफ्ते की सुबह की अवलिन सातों में नामालूम रहजन फायरिंग करते हुए एक शख्स से 6 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए. इस वाक़े का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है जिसमें मुश्तबा रहजन बैंक स्ट्रीट के पास देखे गए. इत्तला मिलते ही खैरताबाद जोन DCP शिल्पा वली क्लूस टीम और दूसरे पुलिस ओहदेदारों के हमरा मुकाम वाक़े पर पहुँच गए. तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली के साकिन ताजिर रंशीद तकरीबन 6:45 से 7 बजे के बाद बैंक स्ट्रीट SBI के ATM सेंटर पहुँचे. 6 लाख रुपए की रकम वो ATM के ज़रिए डिपॉजिट करना चाहते थे. सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर के नरसिम्हा के मुताबिक रंशीद का कुछ लोग पीछा कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि रंशीद के पैर पर फायरिंग करते हुए 6 लाख रुपये का बैग छीन लिया गया और राह फरार इख्तियार की गई. ज़ख्मी हालत में मुतासर शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया. खैरताबाद जोन DCP ने बताया कि दौरान 2 राउंड फायरिंग हुई थी. एक गोली मुतासर शख्स के पैर में लगी है. मुतासर शख्स एक्टिवा गाड़ी पर ATM सेंटर पहुंचा था. DCP ने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है. इस वाक़े से सुबह के औक़ात में पूरे इलाके में सनसनी देखी गई है.
చేతుల గంగన్ సార్. आज सुबह करीब 6:50 to 7 AM के बीच में रिनशाद बोल के एक केरला से जो आया हुआ है बिज़नेस के लिए हैदराबाद को, उन्होंने ATM में SBI ATM कोटी सुल्तान बाज़ार PS लिमिट्स में कैश डिपॉजिट करने के लिए गए थे बाइक में, उसके बाइक में। उसी वक्त दो अनजान अक्यूज्ड पर्सन्स नो आके कॉन्फ्रंट करके आके उसको उसके पास जो बैग है कैश के साथ वो और एक बाइक का कीस लेके बाइक के साथ भाग गए। और वो जो स्ट्रगल में एक राउंड भी मारा और दूसरा वाला मिस हुआ, लेकिन एक तो लगा। तो वो CCTVs वेरीफाई करने से पता चलता है कि वो काचीगुड़ा तरफ चले गए और हम लोग ने CP साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक टास्क फोर्स CCS और हमारे लॉ एंड ऑर्डर टीम्स भी 5 टीम्स करके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हैदराबाद के नवाही इलाके चिरलापल्ली में एक ही ख़ानदान के 3 अरकान की ख़ुदकुशी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक चिरलापल्ली और गटकसर रेलवे स्टेशन के दरमियानी शब तकरीबन 2:30 बजे माल बरदार ट्रेन के लोको पायलट ने पटरियों पर लाशें देखकर वॉकी टॉकी के ज़रिए मुतल्लिक़ा हक्काम को इत्तला दी। पुलिस जब मुकाम वाक़े पर पहुंची तो रेलवे की पटरियों पर सुरेंद्र रेड्डी, उनकी अहलिया विजया और बेटी चेतनिया की लाशें पाई गई। महलून का ताल्लुक़ बोर्ड उपल से बताया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन की हदूद वट्टेपल्ली में जुए के अड्डे को बेनकाब करते हुए जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 9,000 रुपये की नकद रकम और कार्ड जब्त किए हैं और इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात भी जारी है। तुम्हारा दे और क्या चाय भी दे पिछला था निकाल मारे लंगा करके चक्कर तो बंद डालो पूरे पैसे डालो। पर्स किधर है तुम्हारा? पर्स निकाल, तुम्हारा पर्स किधर है? डाल आ गया ये डाल पे पूरे डाल, ये डाल जो पूरा डालो बोला। आंध्र प्रदेश में YSRCP के लीडर अंबाटी रामबाबू को गुंटूर में पूजा के दौरान मुबैना हमले का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर की गई तनकीदों के तनाजुर में ये मुबैना हमला हुआ है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में 7 कॉरपोरेशन और 110 म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 28,456 पर्चे नामजदगी मौसूल। तेलंगाना पुलिस ने फ़ोन टैपिंग मामले में साबिक़ वज़ीर आला KCR को एक और नोटिस की जारी। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के स्टैंडिंग कमेटी ने 11,460 रुपये के बजट को दी मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, पुलों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मजलिस ने बजट को नाकाफ़ी करार दिया। GHMC की आमदनी बढ़ाने पर जोर। BRS पार्टी के सरबराह KCR की फार्म हाउस पर ही पूछताछ की दरख्वास्त पुलिस ने की मुस्तरद। इतवार की दोपहर 3 बजे पुलिस स्टेशन आने की हिदायत। KTR ने तरीक़ेकार पर उठाए सवाल। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की खामोश तब्दीली जमहूरी इनक़लाब के तौर पर उभर रही है। कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक सीखने पर गवर्नर ने तलबा पर दिया जोर। हैदराबाद बैंक स्ट्रीट कोठी पर ताजिर के पैर पर फायरिंग करते हुए रहसन 6 लाख रुपए का बैग लेकर फरार। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। हैदराबाद के नवाही इलाके चिल्लापल्ली में एक ही खानदान के 3 अफराद ने ट्रेन की पटरी के नीचे आकर की खुदकुशी। तेलंगाना वनप्रति से समेत ग़िज़ा से 20 से ज़्यादा तालिबात मुतासिर। सरपरस्तों का इजहार फ़िक्रमंदी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।